planning your future post NEET 2024 results? Well, do not miss out on this video as we explore the best medical career options right from MBBS to specialized field for all of you, along with course length and salaries. We are going to understand the various opportunities that we may get after NEET. Okay, some of you might be thinking that the only MBBS is the opportunity that we get after the NEET, but there are various other opportunities that are waiting for us and we can get the handsome salary as well on these platforms. Medical career options after NEET that we get. So many of you think that if we are not getting the desired marks in the NEET exams, okay, so our career has been wasted. But this is not the complete truth. Okay, there are various other opportunities as well. Okay, that provides a better opportunity. Okay, and a handsome salary. Okay, let's start with the BDS, the Bachelor of Dental Surgery. So classroom program and followed by 1 year of mandatory rotating internship. So basically this degree is almost equivalent to the MBBS. Okay, so what you got here, first of all, if you want to enroll in this course, you must have chosen the physics, chemistry and bio in your 12th examination, and you should have at least 85% scored in your 12th book. Okay, so basically by pursuing this course you can get the opportunities like you can be a dentist and dental surgeon, endodontist, or the oral or maxillofacial pathologist. Okay, so these are the opportunities that you may get by pursuing these courses. Okay, अगर मैं एक चीज बोलूं यहाँ पर आपको कि BDS जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इक्विवेलेंट है हमारे MBBS के। लोग ऐसा समझते हैं कि MBBS परस्यू नहीं हुआ या MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये चीज बहुत खराब चीज है, बट BDS ऑल्सो प्रोवाइड अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू यू। ओके, लाइक अगर आप डेंटिस्ट बन गए, अगर आप डेंटल सर्जन बन गए तो मार्केट में उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जो कि एक MBBS की है। Okay, and you can get the a handsome salary value of 3 lakhs to 9 lakh per year. Okay, and I'm talking about the starting phase only. Okay, and as just like the MBBS, you can also run your own clinic. Okay, and you have an idea कि आपके क्लिनिक में आप कितना ज्यादा मतलब अमाउंट गेन कर सकते हो, it depends on the patient counts. Okay, so this is the very good opportunity that you may get after completing the NEET exams, after clearing the NEET exams. Okay, next is the BMS, Bachelor of Ayurvedic Medicines and Surgery. आयुर्वेदा तो बहुत ज्यादा पुराना हमारा हो रहा है इंडियन कल्चर में कि इसमें हम क्या करते हैं कि we treat patients with the Ayurvedic medicines. Okay, and this course is recognized by the Medical Council of India in 1993. So basically it is a 5-year graduate program followed by 1 year of practice, okay, internship. So for this, the degrees, this degree is identical to the Bachelor of Medicines and Bachelor of Surgery like the MBBS, and for enrolling this course the candidate must have passed the class 12 with the PCB as PCB तो होना अपना मैंडेटरी है with 50% मार्क्स। और आयुर्वेदा इसमें आप जो सैलरी आपको जो मिल सकती है वो 1.6 to 8.1 लाख पर एनम एट द स्टार्टिंग फेज में आप ये कर सकते हो। इसके लिए 400 प्लस स्कोर, मतलब मिनिमम 400 स्कोर तो आपका नीट में रहना ही चाहिए। तो ये भी जो कोर्स है ये भी इक्विवेलेंट है हमारा एज द MBBS। ओके, next है pharmaceuticals. As we know कि pharmaceuticals play a very important role in diagnosing and treating the disease. Okay, तो क्योंकि obviously आप किसी भी पेशेंट को ठीक कैसे करते हो, उसको मेडिसिन दे करके obviously, तो इसीलिए एक ये पूरा हमारा डेडिकेटेड कोर्स है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो कि आप 12th क्लास के बाद परस्यू कर सकते हो। ओके, इट्स अ 4 years course and this course also provide an opportunity to do an integrated MBA, okay, in 5 years. Okay, and after you can get the
specializations like the B Pharma and the pharmaceuticals chemistry, okay, and the pharmacology in this field. ओके लाइक अगर आपने बी फार्मा किया तो बी फार्मा करके आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. यू कैन बी अ फार्मिस्ट, ओके, यू कैन बी अ ड्रग इंस्पेक्टर, ओके, एंड यू कैन बी अ एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. और खुद और आप इसमें एक मेडिकल स्टोर को भी मतलब कर सकते हो, उसका लाइसेंस आपको यहाँ पे मिल सकता है. ओके तो बी फार्मा जो है ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. आफ्टर क्लियरिंग योर नीट एग्जाम्स और एट द इनिशियल फेज यू कैन गेट द 4 to 6 लाख पर ईयर इनिशियली एट द इनिशियल फेज. ओके नाउ कम्स टू द बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी का तो आजकल बूम सबसे ज्यादा है. ओके अब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें काफी सारे हमारे ब्रांच आते हैं लाइक द जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड द सेलुलर इंजीनियरिंग. बायोटेक्नोलॉजी है क्या? सो बेसिकली इज द इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्निकल फील्ड इन द बायोलॉजिकल फील्ड. ओके आजकल आप देखते होंगे कि एग्रीकल्चर में कितने तरह के नए नए तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं. तो आखिर वो किस तरीके से अवेलेबल है? हमने उनके जीन में क्या किया है? मॉडिफिकेशंस किया है. ठीक है, जीन्स में मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट वैरायटीज के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यहाँ पर हम निकाल सकते हैं. अच्छा आपने देखा होगा कि ब्रीडिंग सिस्टम भी है. ठीक है, ब्रीडिंग सिस्टम के मान लो जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत ही जूनियर क्लासेस में आपने भी एक चैप्टर पढ़ा होगा फाइबर टू फैब्रिक, है ना. तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि वी गेट द वूल, ओके, फ्रॉम द शीप एंड यार्ड. अब जैसे हमें हाई क्वालिटी वूल चाहिए, तो हाई क्वालिटी वूल अगर हमको चाहिए तो ऑब्वियसली हर ब्रीड की शीप जो होती है वो उतना वो उस क्वालिटी का वूल नहीं देती. तो यहाँ पर रोल किसका आता है? यहाँ पर रोल आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का. सो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन में मॉडिफिकेशन करके जिस ब्रीड से हमको वूल ज्यादा मिल रहा है उस ब्रीड को हम ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके सो दीज थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन द बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि मैंने बताया इट्स इन्वॉल्व यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करके आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? लाइक यू कैन बी अ बायोमेडिकल इंजीनियर, रिसर्च एसोसिएट एंड द लैब टेक्नीशियन. ओके बायोमेडिकल इंजीनियर में तो आप आगे जा करके और भी अपना करियर परस्यू कर सकते हो. इवन यू कैन गो इनटू द रिसर्च फील्ड एज वेल. ओके इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्टिंग एज, तो स्टार्टिंग में यू कैन इजिली गेट दी 6 to 10 lakh एनुअली विद सम एक्सपीरियंस. सो बायोटेक्नोलॉजी इट्स एन अपग्रोइंग फील्ड. ठीक है, ये सबसे अच्छा फील्ड है, बल्कि बायोकेमिस्ट्री एक इसके इक्विवेलेंट इसके और इसके पैरेलल फील्ड है बायोकेमिस्ट्री. तो उससे भी कहीं ज्यादा लीड कर रहा है आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट बहुत हो रहा है. ओके देयर आर सो मेनी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज दैट यू मे गेट विद दिस फील्ड. ओके तो बायोटेक्नोलॉजी अगर ये इसको आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो. ओके लाइक there are various other paramedical sciences courses as well that are available here. Okay अब देखो पैरामेडिकल साइंसेज जो होते हैं ना, ये जो जितने भी हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं दैट आर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज. ओके इस यहाँ पे हमारा मतलब मोटिव क्या होता है कि वी आर नॉट मतलब हर इंसान का मोटिव अपना अलग हो सकता है. बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो कि इंस्पायर हो फ्रॉम अ रिसर्च फील्ड, जिनको रिसर्च फील्ड में जाना हो. ओके कुछ ऐसे मतलब हो सकते हैं जिनको एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए. सो इफ यू वन ऑफ देम देन यू कैन गो फॉर द पैरामेडिकल साइंसेज. ओके तो पैरामेडिकल साइंसेज में बेसिकली होता क्या है, हम कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हम यहाँ पे करते हैं जो कि हमको ट्रेन करते हैं फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज. ओके जो कि मेडिकल में फैसिलिटीज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. लाइक जैसे एक्सरे हो गया, हमारा डायग्नोस्टिक टूल हो गया, सीटी स्कैन हो गया. ओके तो इन सब के स्पेशलाइजेशन के जो कोर्सेज होते हैं वो दैट कम्स अंडर द पैरामेडिकल साइंसेज. ओके एंड और द पैरामेडिकल डिप्लोमा भी होते हैं इसमें कई सारे. ओके लाइक जैसे कुछ कोर्सेज को मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है, जैसे बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिनिंग. ओके इट्स अ 3-year प्रोग्राम. ठीक है तो रेडियोग्राफी एंड इमेजिनिंग, ठीक है, मतलब कि ये आपका डील करेगा एक्सरेज एंड सीटी स्कैन्स और एमआरआई के साथ. ठीक है उनकी जो भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है वो आपको इस कोर्स में दी जाएगी, है ना. और यू कैन गेट दी
जॉब इजीली इन एनी नियर बाई हॉस्पिटल, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, द ऑन एन एवरेज सैलरी 15,000 to 16,000 per month, okay, at the initial phase. The second is the bachelor is psychotherapy, ठीक है। तो अब अब ये भी हमारा 3 years का मतलब वो है प्रोग्राम है, ठीक है। एंड बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है कि जिसमें हमारा ऑप्टिक्स इन्वॉल्व हो, लाइक मतलब जैसे ऑप्थोमोलॉजी होती है, ठीक है, और जिसमें हमारा आई का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बहुत सारे ऐसे डिप्लोमाज हैं जो कि आई से हमारे रिलेटेड है, ठीक है। तो एक तो आई हमारा सर्जन होता है जिसके लिए पूरा एमबीबीएस करना पड़ता है, एक उसके लिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स भी होता है जिसमें वो सारे टेक्निक्स और वो सारे आप चीजें सीखते हो जो कि हमारे आई से रिलेटेड है, ओके। इसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टार्टिंग सैलरी इज 49,000 पर मंथ, ओके। एंड द अदर कोर्सेज दैट इंक्लूड्स नर्सिंग, dialysis therapy, x-ray technology, medical record technology and medical imaging technology. So ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं that comes under the paramedical sciences, okay। तो ये हमारा 3 to 4 years का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी इसके अंदर काफी है और इनिशियल फेज में हमारी सैलरीज भी इसमें अच्छी ही रहती है, ओके। नाउ कम्स अंडर द हॉस्पिटल एंड द हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ओके। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, ओके। जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, इन द सेम वे द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट आल्सो प्रोवाइड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ओके। पहली बात तो हम समझते हैं कि व्हाट इज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है। हम सब हॉस्पिटल में विजिट किया है कभी ना कभी। हॉस्पिटल में हमने क्या देखा है, वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं क्या? देयर आर मेनी सो अदर स्टाफ एज वेल। वहाँ पे नर्सेज भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पे रिसेप्शन भी होता है, ठीक है। वहाँ पे बिलिंग काउंटर भी होता है। सब चीजों को मैनेज कौन करता है? तो वी नीड अ मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज आवर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम एज वेल, ओके। जहाँ पे डॉक्टर्स को मैनेज करना है, जहाँ पे हमको नर्सेस को मैनेज करना है, जहाँ पे अदर स्टाफ को मैनेज करना है। ऑब्वियसली जिस हेल्थ केयर सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम बूस्ट कैसे करेगा? जब वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होगा। So there are various courses, okay, that are available in the market, okay, that provides graduation in the healthcare management, okay। यहाँ पर जो भी and even you can pursue your MBA degree in the healthcare management, ठीक है। इसमें अगर आप MBA कर लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की तरह बिल्कुल एक अब ग्रोइंग फील्ड है ये इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल्स ऑब्वियसली अब इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो हॉस्पिटल्स के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अब जैसे जैसे हॉस्पिटल्स का एक्सपेंशन होगा, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बूस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हेल्थ केयर मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इतनी सारी चीजों को डील करना है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली so there are involvement ensures better coordination and efficiency across different hospitals department and enhancing the overall healthcare experience, okay। इसके अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आफ्टर 12, ओके, आप डायरेक्टली इस फील्ड के अंदर स्विच कर सकते हो। देयर आर वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज, ओके, दैट आर रनिंग इन दिस फील्ड, ओके। आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर लिया एंड और आपको और आगे अगर इसमें निकलना है तो यू कैन गेट एन MBA, ओके। नाउ वेटनरी एंड द एनिमल साइंसेस, ओके, ये भी एक वेल नोन फील्ड है, ओके। अगर MBBS में नहीं होता है तो वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। इसके लिए भी हम यहाँ पे सोच सकते हैं। वेटनरी के भी एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर की भी ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा हमारा मैं कहूँ तो वो है, मतलब गोल है कि अगर हम इसको फॉलो करें। ये एक 5.5 ईयर का कोर्स है, ठीक है, जो कि जिसको आप मतलब परस्यू करके एक वेटनरी डॉक्टर आप बन जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना खुद का एक क्लिनिक सेटअप करने की, ऑब्वियसली, ठीक है। और हम जानते हैं आजकल पेट्स का बहुत ज्यादा वो है कि मतलब जाहिर सी बात हर एक इंसान चाहता है कि एक पेट ओन करना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेटनरी की भी हमको जरूरत है, वेटनरी डॉक्टर्स की भी हमको जरूरत है, ठीक है। तो विद दिस डिग्री यू कैन वर्क एज अ पेट केयर प्रोफेशनल, ओके। और एवरेज से मतलब सैलरी अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, हाँ इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट स्कूप भी हैं, ठीक है। तो मतलब ऑन एन एवरेज सैलरी यू कैन अर्न अप टू दी
74,000 per month in India. Okay. Now comes to the food technology. ठीक है. सो फूड टेक्नोलॉजी जो है, अब देखो ये कितने सारे फील्ड्स हमारे ये नीट के निकल करके आ गए हमारे पास, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी है. ठीक है. अब फूड टेक्नोलॉजी क्या है, देखो जब जो हम यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ हमारे पैकेज फूड की. पैकेज फूड में अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं. ठीक है. तो वो प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, ठीक है, अच्छा कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज होने चाहिए, कौन कौन से हमारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूज नहीं होने चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं. तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक पूरा हमारा डेडिकेटेड कोर्स है. ठीक है. जिसको हम फूड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. इसके ऊपर डिप्लोमा भी होता है और इसमें यहाँ पे हमारे पास ग्रेजुएशन कोर्सेज के भी ऑप्शंस हैं. ठीक है. तो अगर हम यहाँ इसमें डिप्लोमा या फिर एक ग्रेजुएशन यहाँ पे हम परस्यू करते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, मतलब इन्वॉल्व होता है. ऑब्वियसली जितने भी हमारे फूड सैंपल्स हैं उनकी टेस्टिंग होती है. आप देखते होंगे कि यहाँ पे अक्सर, जैसे कुछ टाइम पहले मैगी को बैन किया था ऑब्वियसली. तो मैगी को मतलब क्यों बैन किया था, उसमें लेड का कंटेंट बहुत ज्यादा था. तो ये सब एनालिसिस जो होती है कौन करता है, ये सब यही एक्सपर्ट्स करते हैं ऑब्वियसली. तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि हम परस्यू कर सकते हैं आफ्टर फूड टेक्नोलॉजी. ठीक है. और यहाँ पे इनिशियल अर्निंग की मैं बात करूंगा, तो इनिशियल अर्निंग जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये 5 lakhs पर एनम है. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपको और जो अदर ऑप्शंस मिलते हैं फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, लाइक द न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट एंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट एंड द टॉक्सियोलॉजिस्ट. ठीक है. तो ये सारे ऑप्शंस आप इसमें जाकर के परस्यू कर सकते हो. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल. ओके. तो नेक्स्ट कम्स टू दी फॉरेंसिक साइंसेस. ठीक है. सीआईडी हम सब ने देखा है. फॉरेंसिक क्या होते हैं, ऑब्वियसली पहली बात तो आप ये बात समझ लो. ठीक है. अब यहाँ पर देखो क्या होता है, दिस फील्ड ऑफर्स द प्रॉमिसिंग कैरियर्स ऑप्शन फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स एंड इनकम्पोसिंग रोल इन लॉ एनफोर्समेंट एंड अदर रिलेटेड सेक्टर्स. ओके. अब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट करता क्या है कि ऑब्वियसली कि कोई भी पेशेंट है जिसकी डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली उसके पीछे उसका रीजन क्या रहा, क्या क्या उसके पीछे फॉरेंसिक साइंस रही, कोई उसके पीछे क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है. ऑब्वियसली उसकी पूरी एनालिसिस करना कि अगर किसी पेशेंट की डेथ हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके पीछे क्या रीजंस रहे. ठीक है. तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपने देखा होगा जो हम जिसको हम क्या मतलब कहते हैं पोस्टमार्टम, बहुत ही एक कॉमन सा वर्ड है वो हम यूज करते हैं. ठीक है. पोस्टमार्टम या फिर ठीक है ऑटोप्सी. ठीक है. तो इन ऑप्शंस ये जो आप मतलब बनते हो तो वो आप फॉरेंसिक साइंस से ही बनते हो. ठीक है. कि ऑब्वियसली कि यहाँ पर अगर किसी पेशेंट की डेथ हुई तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज तो इन्वॉल्व नहीं थी, तो उसका पूरा चेकअप हमें जो करना पड़ता है वो है हमारा फॉरेंसिक साइंस. ओके. इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं वो 6 lakhs एनुअली एट द स्टार्टिंग यू कैन गेट, मतलब एट द गवर्नमेंट सेक्टर. ओके. तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस जो कि आप अपने परस्यू कर सकते हो